Hello everyone, I welcome you all to this amazing channel of Tech Gurus. Today we are going to study about a very crucial topic of standard 10th science, that is double circulation in heart. Students are very much confused when it comes to the double circulation flow of blood in the heart. So we will be clearing that topic today and we'll discuss about the double circulation in detail. Fine. Before starting the lecture, I would like to introduce you about our ongoing crash course which has already started, in which we are covering the science and maths of standard 10th within 60 days, and we are also providing a test series which will provide a proper analysis of your performance and your preparation. So do not miss this amazing opportunity. It's exclusively on our offline center. This is the address. Do reach us. And these are the contact numbers, okay? And apart from that, I have one more announcement to make for those students who are moving from 11th to 12th. So these students are getting an opportunity to win these 3 gifts if they score very perfect, like 100% score or a very nice score in the scholarship exam. So this is a scholarship exam which is going to be conducted in our offline center on 17th of December, that is Sunday. So do not miss this amazing opportunities. Whoever you are in contact with the students of 11th, do let them know about this amazing offer and do reach us. And if you need any kind of information or any kind of help, you can contact us on these numbers. So now let's move to the topic of today. What's the topic? It's double circulation in humans. Humans में ये डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है? सो बिफोर स्टार्टिंग दैट, आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच इज हार्ट. ओके, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. व्हाट डज इट पंप्स? इट पंप्स ब्लड. क्या पंप करता है? ब्लड पंप करता है. So if I talk about heart, heart किस चीज से बना है? So you are very well aware कि there is a type of muscular tissue and there are 3 types of muscular tissue. One is skeletal, smooth and cardiac. So heart is made up of cardiac muscle. Clear? After that, if I talk about the size of a heart, तो हर किसी का जो हार्ट होता है, इट कैन बी एनालाइज कि उसका साइज कितना होता है विद अ क्लिंच्ड फिस्ट. लाइक क्लिंच्ड फिस्ट इज बंद मुट्ठी. सो जिसकी बंद मुट्ठी जितनी बड़ी होती है उसका हार्ट उतना ही बड़ा होता है. साइज इक्वल टू क्लिंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी. ओके, तो ये जो हार्ट है, इस हार्ट के चारों तरफ एक कवरिंग होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम. ठीक है, कवरिंग होता है इस हार्ट पे जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम. और ये जो पेरिकार्डियम होता है, दिस इज डबल लेयर्ड. इट इज बाइलेयर्ड और यू कैन से डबल लेयर्ड, एंड देयर इज अ फ्लूइड इन दैट विच इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को. सो इट वाज लाइक एनफ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू हार्ट. एंड वन मोर थिंग, you should be knowing there are 4 chambers in our heart. Human heart has 4 chambers. Human heart के पास 4 chamber होते हैं. And what are these 4 chamber? If I talk about these 4 chamber, इन 4 chambers का नाम क्या होता है? So these 4 chambers are 2 atrium and 2 ventricles. This is right atrium, this is right ventricle, left atrium and left ventricles. तो human heart has 4 chambers. ठीक है, इतना आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा. अब let's move forward. जब बात डबल सर्कुलेशन की हो रही है, जब we are discussing about डबल सर्कुलेशन, तो इसमें 2 चीजें होती हैं. एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन. ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन मिल के बनता है डबल सर्कुलेशन. तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है?
सिस्टमिक सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन का वो पार्ट है जहां पे ब्लड डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक आ रहा है, वो सर्कुलेशन का पाथवे अदर देन लंग्स के अलावा जितने भी अलग बॉडी पार्ट्स है वहां से जब ब्लड हार्ट तक पहुंच रहा है या वहां से हार्ट से जब वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक जा रहा है तब उसे हम कह रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेकिन जब ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ और लंग्स से हार्ट की तरफ आ रहा है तो दैट पार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजनेशन। वी नो दैट एल्वोलार सरफेस पे डिफ्यूजन होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यू टू द पार्शियल डिफरेंस ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर चला जाता है। नाउ यू विल बी थिंकिंग कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गया? सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रिजल्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। हमारे बॉडी में जब रेस्पिरेशन होता है, जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं When I talk about respiration, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमने जो भी खाना खाया लाइक द सिंपलेस्ट ग्लूकोज, इसका जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑब्वियसली खाना खाया एनर्जी नहीं बनेगा तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो जब ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है यानी कि ऑक्सीजन के हेल्प से टूटता है तो क्या बनता है, एनर्जी बनता है। और एनर्जी किस फॉर्म में बनता है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनता है। और साथ ही साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड H2O बनता है। एंड यही CO2 ब्लड को डीऑक्सीजनेट करता है और इसका बाहर आना जरूरी होता है, यही जाता है एल्वोलार सरफेस तक। CO2 बाहर चला जाता है ड्यू टू डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। फाइन, इतना आप समझ गए? वेरी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, तो हम जरा समझते हैं कि ये जो पूरा ब्लड का फ्लो हो रहा है ये कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या होता है कि जितना बॉडी में ऑर्गन्स है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सुपीरियर ऑर्गन्स वो होंगे जो हार्ट के लेवल के ऊपर है, जहाँ पे हार्ट है उस लेवल के ऊपर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन्हें हम सुपीरियर कहते हैं। जो नीचे वाले हैं उन्हें हम इंफीरियर कह रहे हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द पोजीशन, ठीक है। तो जो भी सुपीरियर ऑर्गन्स है उससे आएगा सुपीरियर वेना कावा। जो भी सुपीरियर ऑर्गन्स है वहां से आएगा सुपीरियर वेना कावा, और जो भी इंफीरियर ऑर्गन्स है जो नीचे हैं वहां से आएगा इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। ये सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा। दिस विल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचाएगा, जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचाएगा, ये पहुंचाएगा डायरेक्टली इनटू द हार्ट। और हार्ट के किस चेंबर में, हार्ट के राइट एट्रियम में। कहाँ पहुंचा देगा, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ये ब्लड पंप होके चला जाएगा, फ्रॉम द राइट एट्रियम ये ब्लड पंप होके चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। बट इन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आता है एक वॉल्व जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसमें 3 कस्प्स होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्योंकि दिस वॉल्व बेयर्स 3 कस्प्स। फाइन, तो ये वॉल्व होते क्यों है, ताकि जो बैकफ्लो है ब्लड का, जब वेंट्रिकल दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ब्लड लंग्स तक पहुंचे वाया द पल्मोनरी आर्टरी। इस दौरान ऐसा ना हो कि वेंट्रिकल से ब्लड दोबारा से एट्रियम में आ जाए, इसीलिए वहां प्रेजेंट होता है वॉल्व, जस्ट टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब यहां से जाएगा वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा, लंग्स के पास। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहां जाएगा,
लंग्स के पास। और लंग्स में कौन सा प्रोसेस होगा? लंग्स में होगा ऑक्सीजिनेशन। लंग्स में क्या होगा? लंग्स में होगा ऑक्सीजिनेशन। यहाँ पे ऑक्सीजिनेशन होगा। ऑक्सीजिनेशन का मतलब, ऑक्सीजिनेशन का क्या मतलब होता है कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चला जाएगा, जितना भी ऑक्सीजन है वो अंदर चला जाएगा। ये पल्मोनरी आर्टरी और ये जो पल्मोनरी वेन होता है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, इन दोनों के कॉन्जुगेशन से एक कैपिलरी बनती है और फिर वहाँ एल्वोलार सरफेस और इस कैपिलरी के बीच में डिफ्यूजन होता है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब ये ब्लड हो चुका है ऑक्सीजनेटेड और इसे पल्मोनरी वेन लेके आएगा कहाँ? इसे पहुंचा देगा लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पहुंचाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये जो ब्लड है जो ऑक्सीजनेट होके आया है ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में वाया बाइकस्पिड वॉल्व। जैसे वहां पे एक ट्राइकस्पिड वॉल्व था ताकि बैकफ्लो ना हो सके जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही यहाँ पे भी एक बाइकस्पिड वॉल्व है। ऐसे वॉल्व जिसमें दो कस्प होते हैं उसे बाइकस्पिड कहा जाता है। और यहाँ जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड का बैकफ्लो एट्रियम में ना हो जाए, इस वजह से देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ बाइकस्पिड वॉल्व टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से दिस ब्लड विल मूव टू aorta. Aorta is the largest artery of the body. This is the largest artery of the body and from aorta ये all body parts तक circulate हो जाएगा। So this is the very simple, interesting but bit complicated for few of our students. So हमने ये बहुत अच्छे से कवर कर लिया कि ये जो पूरा डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है ये कैसे होता है, ठीक है। सो बिफोर एंडिंग हम इसे एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ। तो डबल सर्कुलेशन में दो प्रोसेसेस है, एक सिस्टमिक है एक पल्मोनरी है। तो इस चीज को अगर एक कंक्लूड किया जाए तो एक सिस्टमिक सर्किट बन रहा है और एक पल्मोनरी सर्किट बन रहा है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, बॉडी के जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जा रहा है और बैकफ्लो ऑफ ब्लड ना हो इस वजह से देयर इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट इन बिटवीन देम। फिर यहाँ से यानी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका लंग्स में जा रहा है वाया पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो रहा है, फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरी लंग से पल्मोनरी वेन में आ रहा है, पल्मोनरी वेन से ये कहाँ पहुंच रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है लेफ्ट एट्रियम में। फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट इज मूविंग टू लेफ्ट वेंट्रिकल और बीच में कौन सा वॉल्व आ रहा है, दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। फ्रॉम हेयर ये मूव करेगा आरोटा में विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी और फिर वहां से देयर विल बी लॉट्स ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, बहुत सारे नेटवर्क्स बनेंगे जो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंच जाएंगे एंड दिस इज हाउ द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन वर्क्स। डबल सर्कुलेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने नहीं देता है, दोनों ही ब्लड को सेपरेट करता है बिकॉज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज वेरी वैल्यूएबल फॉर ह्यूमंस। दैट वाज इट। सो आई थिंक it must be clear to you. So if you have any doubts, do let me know in the comment section. If you like the video, do hit the like button. If you subscribe the channel, then you will be getting more such amazing videos. So keep learning, keep growing. Thank you so much.